Hello, good morning, students. How are you all? I hope you all are very fine. So, my dear students, let's start economics class. Today, we are going to start chapter 8. This is measures of central tendency. Mean. So, let us see first what is measures of central tendency. A single figure that can represent the whole series is known as central tendency. एक जो सिंगल फिगर सारी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रल टेंडेंसी. ओके, a single figure that can represent the whole series is known as central tendency. Now second, arithmetic mean. What is arithmetic mean? Arithmetic average is the sum total of all items divided by their number. This is very much clear to you. Now see the meaning of mean. Average. An average is an attempt to find one single figure to describe all the figures. Okay. To present huge data in summarizing, to make easy comparison. Okay. So this mean is divided into four parts. First is individual series, discrete series, continuous series, and special cases. So first of all, today we will see the individual series and discrete series. See, in this individual series there are three methods: direct method, shortcut method, step deviation method. And same as it is in the discrete series also, three methods are there. Now let us see in detail. First of all, we see the individual series. In the individual series means a series in which frequency are not given, जिसमें frequency नहीं दी जाती है. Here the mean can find by three methods. इसमें जो mean है वो three methods से find out होता है: direct method, shortcut method, step deviation method. First is direct method. See, in this, as mentioned above, here all the terms are added and then divided by the number of terms. See here, as mentioned below, not above, as mentioned below. Here all the terms are added and then divided by the number of terms. अब यहाँ पे अगर हम सिम्बॉलिकली इसको एक्सप्लेन करते हैं, सी हियर एक्स बार, एक्स के ऊपर जो स्लीपिंग लाइन लगी है दैट इज़ कॉल्ड अ एक्स बार इज इक्वल टू x1, x2, x3. इन सबको हम ऐड कर देते हैं. देन वी विल डिवाइडेड हाउ मेनी नंबर्स, मतलब वो कितने हैं. सी हियर इन द क्वेश्चन एक्स इज़ 10, 20, 30, 40, 50. तो इन सबको अगर हम टोटल कर देते हैं देन वी विल गॉट द सिग्मा एक्स. ये जो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स दिया हुआ है, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स और टर्म्स, ये जितने भी हमारी आइटम्स हैं उनको हम टोटल कर देते हैं. देन वी गॉट द सिग्मा एक्स, हमें सिग्मा एक्स मिल जाता है. एंड एन इज़ वॉट, एन जो है टोटल नंबर ऑफ आइटम. कितने आइटम्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5. 5 आइटम्स आर देयर. तो हम 120/5 से उसे डिवाइड कर दिया तो विल गेट द मीन 30. Okay, this is the this is the question. If this type of question will come to you and they will tell you to find out through the direct method, then you can put this formula here. Now let's see the shortcut method. Second is shortcut method. Here x bar is calculated using an assumed mean. अब इसमें क्या होता है, हम mean को assume करते हैं. I'll tell you when we will do the question. Taking deviation from it, the following formula is used. See here, the formula of shortcut method is x bar is equal to a plus sigma d by n. अब जो d है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? d इज़ फाइंड आउट बाय द x माइनस a. x तो आपको पता ही है कि जो हमारे आइटम्स के वो दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं. And a is what? A is a assumed mean. See here in the question, x क्या है हमारे पास? 10, 20, 30, 40, 50. अब assume mean हम क्या करते हैं, जिसके मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ब्लू स्केच से. अब अंडरलाइन मोस्टली हम सेंटर वाला कर लेते हैं जो एज्यूम करते हैं. उससे क्या होता है, हमें इजी हो जाता है सम करना. तो जब भी अगर आप भी कभी एज्यूम करो तो आप सेंटर वाला जो नंबर है वो एज्यूम कर लीजिएगा. देन सेंटर नंबर व्हेन वी एज्यूम, अगर हम एज्यूम करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या दिया, x माइनस ए. तो x क्या है हमारा? 10. 10 माइनस ए एज्यूम्ड मीन 10 माइनस 30.
तो इफ बड़ा नंबर जो हमारा बिग नंबर है उसका साइन माइनस है तो -20 विल कम। फिर 30 में से 20 माइनस -10 विल कम हेयर। देन आफ्टर दैट 40 में से 30 गए तो कितने बचे 10। आफ्टर 50 में से 30 20। देन -30 +30, -30 का एंड +30 का, तो बोथ अगर हम उसे करते हैं तो प्लस और माइनस ज़ीरो आ जाएगा। फिर x बार इज इक्वल टू 30 + 0/5। अगर हम किसी को भी ज़ीरो से डिवाइड करते हैं विल गेट द आंसर 0। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 30 हमारे पास बचा, तो 30 इज़ मीन। देखो किसी भी मेथड से अगर हम करते हैं, डायरेक्ट मेथड में भी हमारा 30 आया था आंसर मीन, एंड इन शॉर्टकट मेथड में भी 30 आंसर आया था। ऐसे ही थर्ड जो मेथड, third is step deviation method. In this step deviation method is not applicable to all the problems here. ओके ये सारी प्रॉब्लम्स में अप्लाई नहीं होता है। इसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू ए अर्थमेट दैट इज एज्यूम मीन प्लस सिग्मा d1/n मल्टीप्लाई c। अब c क्या है, क्लास इंटरवल। जो भी क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं हम c, एंड d1 वी विल फाइंड आउट बाय d/c। जैसे कि हमने लास्ट शॉर्टकट मेथड में d फाइंड आउट किया था, उसको अब हम डिवाइड करेंगे क्लास इंटरवल से। लेट्स सी हाउ टू डू दिस। x, अब x हमें क्या दिया हुआ है 10 20 30 40 50 दिए हुए हमें, उससे हमने क्या फाइंड आउट किया, d फाइंड आउट किया। किससे, कैसे किया, एज्यूम करके। 30 को हमने एज्यूम किया, 30 एज्यूम किया, तो उसके बाद उसको हम माइनस किया, तो 30 - 1 10 - 30 -20 20 - 30 10। ठीक है, ऐसे ही 30 में से 30 गए 0, एंड देन 40 - 30 इज़ 10, एंड देन 50 - 30 इज़ 20। अब अगर 20 + 10 करते हैं हम तो 30 हो गया, एंड हेयर ऑल्सो 30, माइनस का 30 एंड माइनस प्लस 30, तो प्लस माइनस माइनस 30 में से 30 माइनस हो गए, दैट इज़ 0। सेन आफ्टर दिस d1। अब d1 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा d आया है x - a करने से -20/10 करेंगे। अब c क्या है, क्लास इंटरवल। अब इसमें 10 20 में कितने का डिफरेंस है, 10 10 का, 20 30 में भी 10 का है, तो सारे डिफरेंस जितने हैं उससे हम उसे डिवाइड करेंगे, तो वी विल गेट द -2। d1 हमारे पास क्या मिल गया, फर्स्ट -2 -1 0 1 2। अब -3 और -3 हुआ पहले और दूसरा 3, तो जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो विल गेट द 0। देन वी विल पुट द formula here, x bar is equal to a plus sigma d1/n multiply s। तो 30 प्लस d1, अब हमारे पास टोटल आया है सिग्मा d1 0, एंड जो n है हमारे कितने आइटम्स हैं ये 5, तो 5 मल्टीप्लाई, और जो क्लास इंटरवल था हमारे पास 10, तो 5 2 ज़ार 10 आ गया, 2 0 ज़ार 0, तो 30 का 30, x बार हमारे पास 30 आ गया। नाउ वी विल सी द सेकेंड मेथड, दैट इज़ डिस्क्रीट मेथड। डिस्क्रीट मेथड जो भी हमारा अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने का है, इसमें भी डिस्क्रीट सीरीज मीन्स वेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल्स आर गिवन, जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है बट द वेरिएबल इज़ विदाउट क्लास इंटरवल, बट उस वेरिएबल्स में क्लास इंटरवल्स नहीं होते। सी हियर इन दिस डायरेक्ट मेथड, दिस हियर ऑल्सो वी हैव टू डू दिस मेथड in this discrete method. We apply all the three methods. Direct method, here the frequency is multiplied by the variable taking the total and dividing the total by total number of frequency, we get x bar। symbolically क्या है, x bar is equal to sigma fx। अब sigma fx का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और x जो हमें दिया हुआ है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो टोटल आ गया उससे वो sigma fx होता है, बाय n। n इज टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल ऑफ x। ठीक है, नाउ टोटल ऑफ x इज, अब सी हियर वी के टोटल एन क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम एन बोलते हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इधर देखो एफ फ्रीक्वेंसी है, एक्स क्या है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, एन है हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एक्स है 2 4 6 8 10। अब इसमें हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जबकि हमें फर्स्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज़ वाले में फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है। तो वी विल calculate it by fx, we can calculate by multiplying 2 × 6, 2 6 are 12, 4 12 4s are 48,
18 6 ज़ार 108, 15 8 ज़ार 120 एंड 9 10 ज़ार 90। अब इस एफ एक्स को हम टोटल करते हैं तो विल गेट द 378 एंड आर फॉर्मूला इज एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय एन। तो हमारा एफ एक्स टोटल आया 378 बाई एन जो है हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल 60 है एंड विल गेट द आंसर 6.3। अब हमें 6.3 आंसर मिल गया। Now see the second method, shortcut method in discrete series. Here assume mean is taken and taking deviations of variable from it. We obtain x bar by using the formula. x bar हमें कैसे formula लगाने से कैसे मिलता है? x bar means mean. a plus sigma f d by sigma f. अब a plus sigma f d by n सेम होता है f और n। अब जैसे कि हमने लास्ट शॉर्टकट मेथड में फाइंड आउट किया था x माइनस ए करेंगे। अब हमने एज्यूम मीन ले लिया 6। अब 6 में से 2 माइनस हुए तो -4, 6 में से 4 गए -2, देन हेयर ऑल्सो 2 4। अब इसको अब हमने क्या किया, ये जो d हमारा फाइंड आउट हमें मिल गया है उसको हम f मल्टीप्लाई d किया, ठीक है, f मल्टीप्लाई डी किया तो हमारा आंसर आ गया ये। एंड आफ्टर इनको प्लस करने से माइनस माइनस प्लस 48 एंड दिस 66 में से 48 माइनस किया 80 सिग्मा एफ डी आ गया हमारे पास। तो वी विल पुट दिस इनटू द फार्मूला। एज्यूम मीन हमारे पास 6 है प्लस हमारा एफ डी का टोटल आ गया 18 प्लस एन है हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल 60 एंड वी विल कैलकुलेट बाय दिस। एंड जो हमारे पास अगर 3/10 आया है तो 0.0 का पॉइंट ऊपर लग जाएगा तो 0.3 6.3। अब देखो जो हमारा डायरेक्ट मेथड का आंसर आया था 6.3, सेम शॉर्टकट मेथड का भी आंसर है हमारा। नाउ सी द थर्ड स्टेप डिविएशन मेथड। दिस मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द प्रॉब्लम्स। दिस मेथड कैन ओनली बी अप्लाइड टू द प्रॉब्लम वेयर एनी कॉमन फैक्टर कैन बी टेकन इन डी एंड वी गेट d इज इक्वल टू d बाई सी वेयर c इज़ द कॉमन फैक्टर। c हमारा कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एफ डी हमने फाइंड आउट किया था पिछले क्वेश्चन में। नाउ वी विल फाइंड आउट द d1। अब d1 कैसे फाइंड आउट करते हैं, d बाई सी करने। c इज़ सेम एज क्लास इंटरवल। 2 और 4, 4 और 6, 6 और 8 और 8 और 10 का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो हम उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 4/2 किया तो 2 2 ज़ार 4 -2 आंसर आ गया। 2/2 किया तो 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2 -1 आ गया। ऐसे ही हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ गया d1 हमें मिल गया। देन वी विल कैलकुलेट एफ डी वन को फाइंड आउट करेंगे तो 6 2 ज़ार 12, 12 1 ज़ार 12, 12 0 ज़ार 18, 0 ज़ार 0, 15 1 ज़ार 15, 9 2 ज़ार 18। तो हम क्या करेंगे, f और d1 को मल्टीप्लाई करेंगे। f और d1 को मल्टीप्लाई करके जो हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया, देन वी विल कैलकुलेट इट बाय विल गेट द 9। हमें 9 मिल गया, देन वी विल पुट इट इनटू अ फार्मूला, देन अगेन वी गेट द सेम आंसर एज 6.3। सो our class has completed here. Today we have seen two methods, that individual series and discrete series. The next class we will see the continuous series and the special cases. Thank you. Have a nice day.